اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. Welcome to online class of Al-Munir High School e-learning system. Now we read our Urdu subject. Students, آج ہمارا کلاس 5 یونٹ نمبر 13 ہے چترال کی سیر. یونٹ نمبر 13 چترال کی سیر. اس کی ہم نے ریڈنگ کرنی ہے اور اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ اس کی ایکسرسائز کمپلیٹ کریں گے. گزشتہ سال مجھے اپنے والدین کے ہمراہ یعنی ان کے ساتھ پاکستان کے خوبصورت علاقے چترال جانے کا اتفاق ہوا. چترال میں ہمارا قیام ایک خوبصورت ہوٹل میں تھا. شام کے وقت جب میں اپنے والد کے ہمراہ یعنی کہ والد کے ساتھ ہوٹل کی بالکونی میں چترال کی وادی کا نظارہ کر رہا تھا. وہ ہوتا ہے نا کہ رومز کے باہر چھوٹا سا ایریا بنا ہوا ہوتا ہے جس میں آپ باہر کا مطلب نظارہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ باہر کی کتنی خوبصورتی ہے. اس کو بالکونی کہتے ہیں. بالکونی سے چترال کی وادی کا نظارہ کر رہا تھا تو میرے والد نے مجھے بتایا کہ چترال کی تاریخ بہت پرانی ہے. 2500 سال قبل بھی یہاں آبادی تھی، یعنی 2.5 سال پہلے بھی وہاں پہ آبادی تھی، لوگ بستے تھے. چترال ضلع کے ساتھ یہاں کے صدر مقام کا نام بھی ہے. چترال کوئے ہندوکش کے دامن میں واقع کئی وادیوں پر مشتمل پہاڑی علاقہ ہے. یہ تمام علاقہ جو ہے یہ پہاڑی علاقہ ہے. چترال کو جنت نظیر وادی بھی کہا جاتا ہے. چترال اپنی تہذیب اور ثقافت کے اعتبار سے دنیا میں منفرد مقام رکھتا ہے، یعنی انوکھا. منفرد ہوتا ہے انوکھا. یہاں کی ثقافت دنیا بھر کے سیاحوں کے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہے. یعنی سیاح ہوتے ہیں نا، ٹورسٹ جو ہوتے ہیں ایک کنٹری سے دوسری کنٹری کی سیر کرنے کے لیے آئے ہوئے ہوتے ہیں. چترال کے موجودہ باشندے ہندوستان، ایران، چین اور دیگر ممالک سے ہجرت کر کے آنے والوں کی اولادیں ہیں. ٹھیک ہے. یہاں کے لوگ پرامن اور صلح جو یعنی کہ لڑائی پسند نہیں ہوتے، صلح پسند ہوتے ہیں. چترال کی مہمان نوازی دنیا بھر میں مشہور ہے، یعنی اگر کوئی ادھر آ جائے تو وہ ان کی بہت اچھے طریقے سے خاطر مدارت کرتے ہیں. چترال قدرتی مناظر، معدنی ذخائر اور جنگلات کی دولت سے مالا مال ہے. یہ سرزمین اپنی آب و ہوا، صاف شفاف چشموں، صحت بخش ماحول، لہلہاتے اور دیو کامت درختوں کی وجہ سے دیگر وادیوں سے انفرادیت رکھتی ہے، یعنی کہ منفرد ہے، یہ انوکھی ہے، ڈیفرنٹ ہے. چترال کے گھروں اور راستوں پر سرخ سیبوں سے لدے درخت اور انگور کے خوشوں سے بھری بیلیں خوبصورت نظارہ پیش کرتی ہیں. یعنی وہاں پر یہ انگور اور سیب جو ہیں یہ بہت زیادہ پائے جاتے ہیں. اور وہاں پر جو گھر ہیں، گھروں میں بیلیں لگی ہوئی ہیں اور رستوں میں بیلیں جو لگی ہوئی ہیں، درخت ہیں سیبوں کے، اور بیلوں پر بے تحاشا انگور لگا ہوا ہوتا ہے. اس کے علاوہ دیار، چنار اور اخروٹ کے گھنے درخت وادی کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کرتے ہیں. وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ اخروٹ جو ہے وہ بہت عام ہے، یعنی ہمارے تو یہاں پہ تھوڑا ایکسپینسو ملتا ہے یا کم ہے، وہاں پر بہت زیادہ ہے. چترال کے اطراف میں یعنی اس کے سائڈوں پہ اونچے اونچے پہاڑ، گہری وادیاں، دلکش نظارے اور حسین مرغزار ہیں، یعنی کہ گرینری ہی گرینری ہے وہاں پر. یہ شہر ایک اہم تجارتی مرکز کا درجہ بھی رکھتا ہے. چترال کے بازاروں میں وافر مقدار میں، یعنی وافر ہوتا ہے بہت زیادہ مقدار میں، خشک میوے یعنی ڈرائی فروٹس جو ہوتے ہیں وہ، تازہ پھل، قیمتی پتھر یعنی پریشیس میٹلز جو ہوتی ہیں سٹونز جو ہوتے ہیں بہت ایکسپینسو، وہ اور دھاتیں وغیرہ عام دستیاب ہیں. چترال کے خوبصورت اور دلکش نظاروں کی وجہ سے سارا سال یہاں سیاحوں کا رش لگا رہتا ہے. یہاں سیاحوں کی رہائش کے لیے لا تعداد یعنی کہ انکاؤنٹیبل مطلب کہ بہت زیادہ ہوٹل موجود ہیں. چترال کے شور مچاتے دریا اور گنگناتے ندی نالے سیاحوں کو دعوت نظارہ دیتے ہیں، یعنی کہ دیکھنے کی دعوت، اس کو کہتے ہیں دعوت نظارہ. دریائے چترال پر ایک پل تعمیر کیا گیا ہے جس کا نام چیوپل ہے. چیوپل کو چترال کا دل بھی کہا جاتا ہے. یہ تاریخی پل بڑی اہمیت کا حامل ہے. یہ پل چترال کو دیگر وادیوں سے ملانے کا واحد رستہ ہے، یعنی کہ اکیلا ایک واحد رستہ ہے یہ. چترال کی شاہی مسجد اپنی خوبصورتی اور گلکاری کی وجہ سے اپنا ثانی نہیں رکھتی، یعنی کہ اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے.
इस मस्जिद को पेशावर की तारीखी मस्जिद महाबूद खान की तर्ज पर बनाया गया है, मतलब कि महाबूद खान की तरह उसको भी बनाया गया है, उसी की तरह की शेप वगैरह देकर। इसकी तामीर 1919 में शुरू हुई और ये मस्जिद 1926 में मुकम्मल हुई। ये मस्जिद पक्की ईंटों और पत्थरों से बनाई गई है। इस मस्जिद में बैक वक्त यानी कि एक वक्त में 3000 नमाजियों की गुंजाइश है, मतलब एक वक्त में 3000 लोग जो है नमाज अदा कर सकते हैं। ये मस्जिद चित्राल की खूबसूरती में इजाफा करती है। मस्जिद की सैर के बाद हम लोग चित्राल के शाही किले में गए। शाही किले का बैरूनी दरवाज़ा बहुत बड़ा और काफ़ी वज़नी है, यानी कि काफ़ी बड़ा है और काफ़ी वज़नी है, भारी है। शाही किले की इमारत नहायत शानदार है। अब शाही किले की जो इमारत है, बिल्डिंग जो है उसकी, वो बहुत खूबसूरत है। इस किले में हमने एक छोटा सा अजायब घर देखा। इस अजायब घर में, अजायब घर क्या होता है, जहाँ पर जो पुराने वक्तों की चीज़ें हैं, इंटीरियर्स जो हैं, मतलब एक्सपेंसिव काफ़ी वो आजकल मिलते हैं, इंटीरियर नहीं होते हैं, सॉरी, वो मतलब पुरानी जो इंटीक्स होती हैं उनको रखा जाता है संभाल कर। तो इंटीक्स जहाँ पर रखी जाती हैं उसको अजायब घर कहते हैं। इस अजायब घर में पुराना असलहा और फौजी साजो सामान रखा हुआ है। शाही किले की दीवारों से टकराता हुआ दरियाए चित्राल बहुत खूबसूरत नज़ारा पेश कर रहा था। अब नेक्स्ट पैराग्राफ पे देखते हैं। शाही किले की सैर के बाद हम लोग चित्राल का अजायब घर देखने गए। वालिद साहब ने हमें बताया कि चित्राल का अजायब घर आसारे कदीमा का वो ख़जाना है जो यहाँ के मुख्तलिफ इलाकों से खुदाई के दौरान बरामद हुआ। यानी कि यहाँ पर अजायब घर में क्या क्या चीज़ें रखी गई हैं, सारे कदीमा, मतलब वही एंटीक कहते हैं ना, सारे कदीमा को, पुराने वक्तों की जो चीज़ें होती हैं। उन्होंने कहा कि पुराने वक्तों का वो ख़जाना है यहाँ पर रखा गया है जो कि लोगों को खुदाई के दौरान मिला था। इस कौमी और सकाफती विरसे में ज़माने कदीम के खेती बाड़ी के आलात, यानी कि पहले लोग खेती बाड़ी कैसे करते थे, कौन से वो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते थे वो, फिर जेवरात, यानी क्या उनके पास कौन से, मतलब उस वक़्त के जो जेवरात होते थे वो, और ज़रूफ यानी बर्तन शामिल हैं। इन कीमती अशिया को 6 गैलरियों में रखा गया है। इस अजायब घर में तारीखी चीज़ें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। अजायब घर की सैर के बाद हम लोग चित्राल गोल नेशनल पार्क गए। ये पार्क चित्राल शहर के बालाई हिस्से में सैकड़ों एकड़ तक फैला हुआ है, यानी इतना बड़ा है ये पार्क पुरफिजा मुकाम, हरियाली और जंगलात की फरावानी के बायस, यानी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, बहुत ज़्यादा जंगल है, मतलब ट्री वगैरह हैं, तो उनकी वजह से सियाहों के लिए बड़ी कशिश रखता है। ये पार्क चित्राल से 1 घंटे की मुसाफत पर है, यानी 1 घंटा दूर है। ये इस पार्क में बर्फानी चीते, पहाड़ी बकरे, भूरे रीछ, हिरन, गीदड़, खरगोश और बंदर बकसरत मौजूद हैं, यानी कि ज़्यादा तादाद में, यानी ये सब जानवर यहाँ पर होते हैं। ये पार्क नायाब जंगली हयात का मस्कन है, यानी कि नायाब होती है मतलब जो रेयर हो, हर जगह पर दस्तयाब ना हो, ठीक है। तो ये जानवर जो है ये उन इलाकों में पाए जाते हैं। यहाँ पर भूरे रीछ या पहाड़ी बकरे या बर्फानी चीते वगैरह जो हमारे यहाँ पे नहीं होते, ठीक है। इस पार्क की ख़ास बात ये थी कि यहाँ जानवर और परिंदे कैद नहीं बल्कि आज़ाद हैं। यहाँ रहने वाली जंगली हयात यानी कि जंगली ज़िंदगी जो है, मतलब ये तमाम जो जंगली जानवर हैं, ये गर्मियों में बुलंद चोटियों पर चली जाती हैं और सर्दियों के मौसम में इस पार्क की तरफ वापस लौट आती है। इस पार्क की निगरानी महकमा वाइल्ड लाइफ के सुपुर्द है। महकमा वाइल्ड लाइफ वाले जो हैं वो इसकी निगरानी करते हैं। ये पार्क दरख्तों, पौधों, फूलों, जानवरों और परिंदों की शक्ल में कुदरत की खूबसूरत तख्लीक है। अब क्या है कि दरख्तों की, पौधों की, फलों की, जानवरों और परिंदों की वजह से ये जगह बहुत खूबसूरत लगती है और कायनात में बड़े खूबसूरत है ये, और कुदरत की खूबसूरत तख्लीकात में से एक तख्लीक है। सारा दिन मुख्तलिफ मकामात की सैर के बाद हम लोग होटल वापस जा रहे थे। मैं अपनी आंखें बंद करके तमाम दिन की मालूमात को अपने जहन में महफूज कर रहा था और चित्राल के दिलकश मुकामात एक फिल्म की तरह मेरी आंखों के सामने घूम रहे थे। ठीक है, अब हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। इसकी एक्सरसाइज हमने सवाल जवाब से स्टार्ट करनी है।
चित्राल की तारीख कितनी पुरानी है? ये देखते हैं हम, इसका जवाब क्या है? चित्राल की तारीख कितनी पुरानी है? चित्राल की तारीख 2500 साल पुरानी है। सेकंड है, चित्राल किस पहाड़ी सिलसिले में वाक़या है? इसका जवाब है चित्राल को हिंदुकुश के दामन में वाक़या है। फिर क्या है नेक्स्ट, क्या चित्राल के लोग मेहमान नवाज हैं? इसका जवाब है जी हाँ, चित्राल के लोग मेहमान नवाज हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, आसारे कदीमा से क्या मुराद है? आसारे कदीमा से मुराद पुरानी जगह है जहां खुदाई के दौरान मुख्तलिफ चीज़ें मिलती हैं जो अजायब घर में रखी जाती हैं, मसलन जेवरात, ज़ुरूफ, खेती बाड़ी के आलात और पुराने सिक्के। ठीक है, नेक्स्ट है, आसारे नेशनल गोल पार्क के परिंदे सर्दियों में कहाँ रहते हैं? इसका जवाब देखते हैं। नेशनल गोल पार्क के परिंदे सर्दियों में वापस इस पार्क में आ जाते हैं या इस पार्क में रहते हैं। सवाल नंबर 2 है, मुनासिब अल्फाज की मदद से दर्ज झैल जुमले मुकम्मल करें। इसमें सबसे पहला है, चित्राल एक अहम डैश मरकज़ भी है। इसमें हम करेंगे तिजारती। सेकंड है, चित्राल की सकाफत सयाहों के लिए बड़ी डैश की हामिल है। इसमें लिखेंगे अहमियत। थर्ड होगा, चित्राल का पानी नहायत डैश था, साफ शफाफ। दरियाए चित्राल पर डैश तामीर किया गया। इसमें हम लिखेंगे पुल। और लास्ट है, चित्राल के शाही किले की डैश नहायत शानदार थी, यानी इसमें हम लिखेंगे अमारत। ठीक है, अब है सवाल नंबर 3, कॉलम अलिफ को कॉलम बे से मिलाएं। इसमें है, चित्राल नेशनल गोल पार्क में परिंदे आज़ाद थे। इसको हमने परिंदे आज़ाद के साथ ज्वाइन करना है। थर्ड है, चित्राल का अपना तारीखी और जोग्राफियाई मुकाम है। थर्ड करना है, चित्राल अजायब घर में, इसमें हम लिखते हैं कदीम अशिया रखी गई हैं। फिर फोर्थ है, चित्राल की शाही मस्जिद पक्की ईंटों और पत्थरों से बनाई गई है। लास्ट है, इस पार्क की निगरानी महकमा वाइल्ड लाइफ के सपुर्द है। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 84 पे हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 4, दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। सबसे पहले है, शाही मस्जिद की तामीर हुई। शाही मस्जिद की तामीर मुकम्मल हुई। इसमें लिखेंगे 1926 में, यानी फोर्थ ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। सेकंड है, चित्राल की वादी को तशबीह दी जाती है। इसमें हमने थर्ड वाली ऑप्शन है जन्नत से, उसको राइट करना है। थर्ड है, चित्राल के इतराफ में है, इसको सेकंड ऑप्शन को राइट करेंगे पहाड़। फिर शाही मस्जिद चित्राल की तामीर शुरू हुई, कब हुई थी? सेकंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, 1919 में। फिर है, चित्राल नेशनल गोल पार्क का रकबा है सैकड़ों एकड़। इसको फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है इसको राइट करेंगे। अब हमारे पास सवाल नंबर 5 है, मुदज्जर झैल अल्फाज से फेल माजी, हाल और मुस्तकबिल के जुमले बनाएं। यानी कि एक वर्ड उन्होंने दिया है, उससे हमने 3 जुमले बनाने हैं, जिनमें से एक जुमला जो है फेल माजी का होगा, एक फेल हाल का और एक फेल मुस्तकबिल का। सबसे पहला वर्ड है हमारे पास वाफर। वाफर, अब इसमें हमने लिखना है, बाजार में आटा वाफिर मिकदार में मिल रहा था। ठीक है, ये हम था में लिख देंगे। सेकंड हम करते हैं, बाजार में आटा वाफिर मिकदार में मिल रहा है, ये हमारा हो जाएगा हाल का। और बाजार में आटा वाफिर मिकदार में मिलेगा, ये हो जाएगा मुस्तकबिल का। ठीक है, अब सेकंड है हमारे पास कयाम। कयाम क्या करेंगे हम इसका, मेरा मरी में कयाम मुख्तसर था, ये आ जाएगा हमारा फेल माजी का जुमला। फिर आएगा मेरा मरी में कयाम मुख्तसर है, ये आ जाएगा हाल का। और उसके बाद होगा मेरा मरी में कयाम मुख्तसर होगा, ये आ जाएगा फेल मुस्तकबिल का जुमला। ठीक है, अब थर्ड हम करते हैं एतबार।
اعتبار کا جملہ بناتے ہیں. مجھے بھائی پر اعتبار تھا، فعل ماضی میں لکھیں گے. پھر فعل حال میں لکھیں گے مجھے بھائی پر اعتبار ہے، اور فعل مستقبل میں لکھیں گے مجھے بھائی پر اعتبار ہوگا. ٹھیک ہے. اب ہے میوہ. میوہ کا ہم لکھیں گے یہ میوہ جات بڑے مزے کا تھا، فعل ماضی میں. اس کے بعد آئے گا فعل حال، یہ میوہ جات بڑے مزے کا ہے، اور فعل مستقبل میں آئے گا یہ میوہ جات بڑے مزے کے ہوں گے. ٹھیک ہے. یہ ہمارا لاسٹ کوشچن تھا اس یونٹ کا. تو اسٹوڈنٹس ہم نے اپنا لیسن نمبر 13 چترال کی سیر جو ہے اس کو کمپلیٹ کر لیا ہے. بہت نیٹ اینڈ کلین اپنی کاپیز پہ رائٹ کیجیے گا. اوکے بیٹا، ٹیک کیئر. اللہ حافظ.